Okay, so we are going to start this chapter, special equations. We have covered similar kind of questions on this topic. Now there is no topic per se as a special equation. It is just that it is a linear equation and the number of variables are more than the number of equations. Now we know that if there are two variables, we should be having two equations to solve it. If you are having one variable, we must have one equation. If you have three variable, we may have three equations. However, the speciality of this equation is the number of variables will always be one more than the number of equations, and yet we are expected to solve that. I mean, that is the kind of challenge that we have in this. So we can just start by this topic by taking a question, an exam question, which says 3x plus 7y is equal to 123, and how many positive integral solutions exist for this equation. So the question is how many. So how would you really handle, I mean, this question, how many? So there could be two questions, how many, non-negative integral solutions exist. This could be a question, non-negative integral solutions. Or you may want to say, positive integral solutions, you may also want. So we'll have two different answers. So that's why two different questions. Now, how would we really approach this question? Now we see clearly that there are two variables and there is only one equation. Now, if you were to plot a graph, it would give me a straight line, right? And this straight line would mean it would have infinite number of solutions, right? So if you have infinite number of solutions, then there is no, there would have been no question at all. However, since there is a question and the question is asking that there are some limited number of solutions, possibly the limit is being imposed by these conditions. Otherwise, how many solutions exist for this equation? Infinite solution exists. So how do you solve it? You solve it by taking, converting one of the variables into other variables. So which variable needs to be equated to which variable? Try to isolate the variable with a lower coefficient. Of course, you can isolate the variable with higher coefficient also, but then it does make sense for us slightly. It helps in solving a question slightly better if you are isolating the variable with a lower coefficient. That means in this case, I can also isolate y, but I can also isolate x. So for example, when I say isolation of x, or y we can write, say for example, y can be written as 123 minus 3x divided by 7. That is the basic meaning when I'm saying isolation of y. This would, of course, question can be handled here also, but it does make sense for me to isolate x because the coefficient of x is lower. Why I'm saying something like this, we'll just see in a moment. You see, we have 123 minus 7y divided by 3, right? Now, whenever we divide by the lower coefficient, this value can also be simplified. Of course, in this case, it is not of a big value, but it can also be simplified in the sense you can write this as 120 by 3 minus 7 by 3y, which of course you can write as 41 minus 7 by 3y, right? So, or, the lower coefficient will also allow us to do something like this, right? That will also help us further in terms of, the values being smaller. So basically what I'm searching, 41 minus 2y minus y by 3, this must give me my value x. You understand this? Right. Of course, since the value is small, in this case, it works out. Now we are looking for values of x. Now we know x is a, let's say we are talking about positive integral solutions, right? So integral means complete value, so it cannot be fraction. Now we know that x and y are both integers.
and 41 is an integral value. Integral minus integral will give me an integral. And then since x is an integral, y by 3 must also be an integral value. If y by 3 is not an integral value, integral minus fractional value will always give me a fractional value, and I can never have x as an integral value. Therefore, this will limit my answers to y being multiples of 3. So if I take y as 3, it becomes 1. So this becomes 6 minus 1, 7. So 41 minus 7. 41 minus 7 will give me 34. Then the next value would be 6 logically. If it becomes 6, so it becomes 2, and it becomes 12 minus 2, 14. So 41 minus 14 will give me 27. The next value would be, yeah, next value would be 9. So if you take 9, this will become 3, this will become 18. 18 and 3 is 21. And so that means 41 minus 21 once again will give me 20. So if you observe these values, see the coefficient of 3 and 7, right? You see when x is being, y is being increased by a coefficient of x, right? X is being reduced by a coefficient of y. You understand this? ये 3, 6, 9 चल रहा है, जो कि क्या है, मल्टीपल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x. तो x का जो वैल्यू है वो किसके कोफिशिएंट से रिड्यूस हो रहा है? y के कोफिशिएंट से. यानी इसमें 3 बढ़ता जाएगा, इसमें 7 कम होता जाएगा. तो इसमें अगली वैल्यू बनेगी 12, तो इसमें 7 कम होके क्या बनेगा? 13. अगली वैल्यू इसमें 3 बढ़ के क्या बन जाएगा? तो इसमें 7 कम होके 6. अगली वैल्यू ये बढ़ के कितनी हो जाएगी? 18. तो 7 बन के -1. And so on and so forth, we can continue. But then we know that this is not an answer for us. Why? Because we are only talking about positive integer solutions. So how many positive integral solutions exist? 1, 2, 3, 4, 5. If the question were to be asked, how many non-negative integral solutions exist? Non-negative का क्या मतलब होता है? जो नेगेटिव नहीं है. जो नेगेटिव नहीं है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. हैं? जो नेगेटिव नहीं है क्या वो पॉजिटिव है? नहीं. वेरी गुड. उसमें 0 भी एक्सेप्टेबल है. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, आई होप यू रिमेंबर दिस. If this is my number system, number line, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is -1, -2, -3. So if you talk of, positive integers, it would mean this. If you talk of non-negative, non-negative का मतलब है negative नहीं है. इसका मतलब है कौन सी values नहीं है? ये वाली values नहीं है. ठीक है, तो 0 इसमें क्या होएगा? नेगेटिव में 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव. तो नेगेटिव नहीं है तो 0 इंक्लूड हो जाएगा राइट साइड में. तो इसका मतलब है उस वाले केस में मेरा आंसर ये आ जाएगा. तो ये मेरा कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, और ये मेरा कौन सा इंटीजर्स है? नॉन नेगेटिव है. समझ में आ रहा है? ये मेरा नॉन नेगेटिव है. तो ये फर्क है. तो 0 एक्सेप्टेबल है. तो क्या हम y की वैल्यू 0 मान सकते हैं एक पर्टिकुलर केस में नॉन नेगेटिव के अंदर? यहाँ पे नहीं माना था ना, क्योंकि पॉजिटिव लिया था. तो अगर हम y को 0 मान लेते हैं एक स्पेशल केस के तौर, y को अगर हम 0 मान लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 41. तो कैन आई से दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ माय सॉल्यूशन. सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के कितने सॉल्यूशन है? 6 सॉल्यूशन है. वेल, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड अकॉर्डिंगली वी आर एबल टू हैंडल दीज क्वेश्चंस. कौन सा बेटा 3? वो यहां से किया हमने, x को आइसोलेट किया. हाँ, अब हमें पता है कि ऐसे इंटीजर होना चाहिए, पूरा होना चाहिए. तो इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तभी वो पूरा आएगा. मान लो 2 है, उसमें से आधा माइनस किया तो 1/2 आएगा, फ्रैक्शनल आएगा. तो पूरे टुकड़े में से कभी भी पूरा माइनस नहीं करोगे इंटीग्रल में से तो टुकड़ा बचेगा. हमें इंटीजर चाहिए.
तो माइनस करने के लिए इंटीग्रल चाहिए। अब एक्स वाई को अपन ने 1 मान लिया तो 1/3 बचेगा ही बचेगा, 2 मान लिया 2/3 बचेगा, 4 मान लिया 4/3 बनेगा, 4/3 इज 1/3। तो वाई सिर्फ ऐसी वैल्यू हो सकती है जो 3 का मल्टीपल हो, कंप्लीट नंबर 3 का मल्टीपल होगा तभी 3 से डिवाइड करके आपको या तो 1 या 2 या 3 मिलेगा। इसीलिए हमने ये निकाला कि y हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3। वहां से हमने इसको डिड्यूस किया है और वहां से हमने इसको सॉल्व किया। आ रही बात समझ में सभी को? ओके, ठीक है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस टेक्स केयर ऑफ दिस चैप्टर। For all practical purposes, this takes care of your this chapter. That's what I'm saying. Okay, but I really want you to solve some of these questions so that we get hang of what we are trying to do. Raju bought E erasers and S sharpeners, spending rupees 24 on the whole. Each eraser cost rupees 2 and each sharpener cost rupees 3. Find the number of possible values of E. Okay, try solving this question. Four possibilities. तो ये कितने? सी राजू बॉट ई इरेजर्स एंड एस शार्पनर स्पेंडिंग रुपीज 24। कितने इरेजर खरीदे? ई नंबर, ई क्वांटिटी। कितने शार्पनर खरीदे? एस क्वांटिटी। एंड ऑन द होल 24 रुपए खर्च किए। ईच इरेजर कॉस्ट 2, एक इरेजर की कॉस्ट 2 रुपए है तो ई इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 ही। एक शार्पनर की कॉस्ट एस रुपीज है तो 3 रुपए का एक शार्पनर है। कितने नंबर ऑफ शार्पनर्स एस खरीदे हैं और एक शार्पनर की कॉस्ट 3 रुपीज है, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3s। इसकी कॉस्ट प्लस इसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें? वंस अगेन स्पेशल इक्वेशन का कंडीशन जहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज वन मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशन। नाउ टेक्निकली इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट।
जनरली एक लीनियर इक्वेशन अगर ट्रीट करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन इस केस में हमें क्या पता है, ई एंड एस क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर बीइंग परचेज्ड। तो नंबर ऑफ आइटम्स कुछ ना कुछ तो खरीदा ही होगा, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर बनना चाहिए, क्योंकि सेज ही बॉट ई इरेजर्स, जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो खरीदा ही है उसने। तो इसका मतलब है ई एंड एस बिलोंग टू नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर की बात कर सकते हैं। अब मैंने कहा था सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, किस वेरिएबल को आइसोलेट करना है, जिसका कोफिशिएंट छोटा है। तो हम कहने से 2e will be taken as 24 minus 3s, e will be taken as 24 minus 3s divided by 2, which is 12 minus 3 by 2s. Now once again we need to figure out e and s. Now minimum value that s can take will be 2, because I cannot take 0 because they bought some s number of articles. So and I know e has to be an integral value, 12 is an integer, integer minus integer तभी बात बनेगी। तो s की वैल्यू मिनिमम क्या बनेगी, 2। अगर s की वैल्यू 2 बनेगी तो ये 12 माइनस 3 कितना बन जाएगा, 9। नेक्स्ट ऑब्वियसली ये 4 बनेगा, तो ये कितने से कम हो जाएगा, 3 से। समझ में आ रहा है, s जो है इसके कोफिशिएंट से बढ़ रहा है, तो e इसके कोफिशिएंट से कम हो जाएगा, तो ये 6 बनेगा। तो अगली क्या वैल्यू बनेगी, 6, तो ये कितना बनेगा, 3। अगला अगर हम इसको बना दें 8, तो ये क्या बन जाएगा, 0। वंस अगेन वी आर नॉट एक्सेप्टिंग 0, अदरवाइज x को भी 0 रख सकते थे, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर है, बिकॉज दे आर बाइंग एटलीस्ट सम आइटम्स। ठीक है, सो यस दक्ष, सो हाउ मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर, 3, 1 2 3, ये मेरा आंसर है। बोलिए, समझ में आ रही बात सभी को, शुड नॉट बी प्रॉब्लम। पल्ले बड़ी कुछ, कौन सी, ये इक्वेशन एज्यूम कर लिया। देखो हमें हमेशा उसको अलग करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला फॉर्मेट है इन अ सेंस, उसको एलिमिनेट करना है, आइसोलेट करना है जिसका कोफिशिएंट छोटा हो, क्योंकि डिवाइड छोटे नंबर से करना पड़े, बस ये फायदा है, ये और कोई लालच नहीं है। तो हम इसको इस यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत है, अलग अलग कर दिया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब 12 में से कुछ घटाना है अपने को, 12 में से कुछ घटा के ई जो है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए, 12 नेचुरल है, नेचुरल में से नेचुरल घटाओगे तभी नेचुरल नंबर आएगा, या फ्रैक्शन घटा के आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा। तो नेचुरल में से नेचुरल यानी खड़ी वैल्यू में से खड़ी वैल्यू घटाओगे तभी खड़ी वैल्यू मिलेगी, खड़ी वैल्यू में से फ्रैक्शन हटाओगे तो अच्छा हाँ, ये भी कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो रही है, ओके। 12 माइनस 2/2s माइनस s/2, ऐसा कर दूं, इसको काट देते हैं, तो ये बनेगा 12 माइनस s माइनस s/2। समझ में आ रहा है, 12 में से s कुछ भी लोगे तो इंटीग्रल आएगा, वही तो बता रहा हूं। मान लो अपन ने 1 ले लिया तो क्या होएगा, 12 माइनस 1 11, उसमें तो 11 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1/2, तो 11 में से 1/2 करोगे तो 10.5 आएगा, 10.5 तो हो नहीं सकता, या तो वो इंटीग्रल होना चाहिए ना। अब मान लो तुमने 3 ले लिया तो 3/2 1.5, तो मतलब 12 में से मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे ताकि वो इंटीजर वैल्यू आए, इसलिए 2 4 6 8 ले रहे हैं। ठीक है, हाँ जी बोलिए, यहां तक समझ में आ रही बात सभी को, नो प्रॉब्लम्स। नीचे रखना होगा ना, क्या करवाती है तमाम प्रैक्टिकल। ओके, Rohan asked Sohan,
when his birthday was. Sohan replied, take the date and month of my birthday, multiply the date by the number of months in a year, multiply the month by 31. The sum of the product would be 639. Find Rohan's birthday. कोई नहीं, पार्टी भी करेंगे, पर पहले ये क्वेश्चन तो करो। चलो करो। हाँ जी, क्वेश्चन बनी क्या है? पीछे नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उधर से। सो उसका बर्थडे मान लेते हैं डी पे था, डेट डी थी, मंथ एम था। तो कह रहा है टेक द डेट ऑफ माय मंथ एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मंथ्स। तो डेट को किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ मंथ से। कितने होते हैं नंबर ऑफ मंथ्स? 12। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो इन एंड मल्टीप्लाई द मंथ बाय 31। मंथ को 31 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद बोलते हैं द सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, इनका जो सम है वो 639 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। आइसोलेट किसको करोगे? डी को। क्यों करोगे? इसका मतलब ये है कि हम ये कर सकते हैं डी 639 डिवाइड माइनस 31m डिवाइडेड बाय 12। अब क्या कर सकते हैं इसको? हैं कोई बात नहीं हो रहा तो जितना मल्टीपल है वो बाहर निकालो। जैसे कि 31m था, 31 को हम 24m माइनस 7m करके डिवाइड बाय 12 कर सकते हैं। तो ये बेसिकली -2m माइनस 7m बाई 12 ये बनेगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले इसका भी हिसाब किताब करना है ना। किसका करना है हमें? 639 डिवाइडेड बाय 12। तो जो जैसे हमने इसको स्प्लिट किया वैसे इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं 639 को। सो 639 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना बनेगा? 12 5 जा 60, 39, 12 3 जा 36, रिमाइंडर 3। तो इसका मतलब ये है कि 639 कैन बी रिटन एज 12 इंटू 53 प्लस 3। यही बात है। और चूंकि डिवाइड बाय 12 है तो ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसको अलग से कर सकते हैं। 12 इंटू 53 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे -2m है, -7m डिवाइडेड बाय 12। अब जो चीज 12 से डिवाइड हो रही है उसको हम अलग कर देते हैं। तो हमारे पास 53 -2m आ गया और ऊपर क्या बच गया? प्लस
3 माइनस 7m डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया। इसका मतलब है 3 माइनस 7m की एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि 12 से डिवाइड हो, उससे हमें क्या मिल जाएगा, डे मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? अब हमने इतना सब नौटंकी क्यों किया, क्योंकि हम अगर यहाँ पे नहीं करते तो m की वैल्यू हमें बहुत, ये कैलकुलेशन हर बार ज्यादा करनी पड़ती। जैसे मान लो n को हमने 1 ले लिया तो 639 माइनस 31 डिवाइड बाई 12 चेक करना पड़ता, फिर 2 चेक करना पड़ता। यहाँ पे आपको देखो बहुत छोटी वैल्यू चेक करनी पड़ रही है। अल्टीमेटली आप कुछ नहीं करके यहाँ पर भी ट्रायल एंड एरर कर सकते थे, बट वी हैव टू टेक एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि हमें छोटी वैल्यू पे ट्रायल एंड एरर करना पड़े। तो जितने न्यूमरेटर में जितनी वैल्यूज पूरी तरीके से डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रही हैं, उनको डिवाइड करके अलग कर दो। जो कंपोनेंट बच गया है सिर्फ उसी को डिवाइड करके आप चेक करेंगे ताकि छोटा हो जाए। मतलब मान लो हम m को 1 पुट करें तो d की वैल्यू निकलेगी ना यहाँ फर्स्ट में ही। तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें पता है कि 3 माइनस 7 नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव आके 53 से माइनस होके ओवरऑल प्लस हो जाए। ठीक है, वो ध्यान रखना, ये मत सोचना नेगेटिव इसलिए एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 53 में से माइनस आ जाए, चल जाएगा, बट हमें अल्टीमेटली डी इज एन इंटीग्रल वैल्यू, तो ये हमारा इंटीजर होना चाहिए। यानी 3 माइनस 7 माइनस 4 12 से डिवाइड तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब है m की वैल्यू 1 इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो m अगर हम यहाँ पे d और m की बात करें तो हम d निकालना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि m की वैल्यू 1 पुट करते ही ये फ्रैक्शन आ जाएगा, तो d क्यों निकाल लें, वेस्ट है। अगर हम m की वैल्यू को 2 पुट करें तो कितना बन जाएगा 14, सो 3 माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस 11 12 से डिवाइड नहीं होता। m की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो 21 माइनस 3 19 आ जाएगा, 18 21 माइनस 3, हाँ 18 नॉट डिवाइडेबल बाय 12। m की वैल्यू 4 ले लेते हैं, 28 और 3 का 25 नहीं आएगा। 5 ले लेते हैं, 35 माइनस 3 32 नहीं आएगा। 6 ले लेते हैं, 6 7 जा 42 माइनस 3 39 नहीं आएगा। 7 ले लेते हैं, 7 7 जा 49 माइनस 3 46 नहीं आएगा। 8 ले लेते हैं, 7 8 जा 56 माइनस 3 53 बाई 12 नहीं आएगा। 9 लेते हैं, 7 9 जा 63 माइनस 3 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब हमने m की वैल्यू क्या रखी 9, तो हमारा पहला आंसर आ रहा है, मान लेते हैं। तो जब हम m की वैल्यू 9 रखेंगे तो ये बन जाएगा 53 माइनस 2 इंटू 9 प्लस 3 माइनस 63 डिवाइडेड बाई 12, ये बनेगा। तो ये बनेगा 53 माइनस 18 माइनस 5, तो 53 माइनस 23 बनेगा। डेट जो बनेगी जिसकी की क्या वैल्यू आ रही है 30, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 30। अब आगे ले जाने की जरूरत है, डेट ऑफ बर्थ तो एक ही होगा ना, एक ही दिन पैदा हो गए ना आप, डेट ऑफ बर्थ ही तो निकालनी है। तो 30 सितंबर, या बोलो आधा आधा हुआ था जी, मैं कुछ दिन अभी मनाऊंगा कुछ दिन बाद में, ऐसा तो हो नहीं। मेंस 12 से ऊपर आएगी नहीं, अगली वैल्यू अगर सॉल्व भी होगी तो कहीं 18 जाएगी या कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, क्लियर है सभी को? ठीक है, कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस? तो फिर ये वाला क्वेश्चन अपने आप से करोगे पूरी तरीके से, जैसे ये मैंने सॉल्व करा दिया, अब ये आप अपने आप से करोगे। रोहित bought bars of 2 varieties of ice cream. The first variety cost 9 per bar. The second variety cost 11 per bar. He paid a total of rupees 227 for his purchase. How many different combinations are possible for his purchase?
आंसर बताना है, आंसर बताना है पूरा। पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है कितने तरीके से परचेज कर सकता, पता नहीं, आप मेरे को टोटल पॉसिबिलिटीज बता दो बस। है और भी हैं। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज बता रहा है, कहीं 0 तो नहीं कंसिडर कर रहा। ओके, सो व्हाट डज इट से? एक 9 है वैरायटी है और एक 11y वैरायटी है, इसकी वैल्यू है x इज इक्वल टू
227 minus 11y divided by 9. ठीक है, तो 227 डिवाइड बाय 9, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 2. तो ये आपका बनेगा 25 प्लस 2 माइनस 2y बाय 9 माइनस y, यही बनेगा. तो बेसिकली 25 माइनस y यही बन रहा है. है अब हमें y की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 0 आ जाएगा. y की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 0, ये 0 आ जाएगा तो 24 हो जाएगा. है क्या 24, ठीक. ओके, 2 4 माइनस 2 नहीं बनेगा, 3 2 जा 6 माइनस 2. हाँ सही. तो हाँ पहला आ गया ये वाला. अब सेकंड नंबर हमें निकालना है, तो इसके बाद ये डिवाइड बाय 9 है, तो 9 और चाहिए होगा, 9 और चाहिए, उसमें 10 हो जाएगा, तो 20. ठीक है, तो 20 माइनस 2 18 बनेगा. ठीक है, माइनस 18 बनेगा, तो माइनस 2 बनेगा, तो माइनस 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा. अगला इसमें 9 और चाहिए होगा, 19 बनेगा. तो यहां से हम देख सकते हैं 11 कम हो रहा है, तो 11 और कम होएगा, 2 आ जाएगा. इसके बाद और 9 ऐड करेंगे. ठीक है, हाँ तो ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर 3 पॉसिबल बनेगा, 24 1 13 10 एंड 2 19. एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? तो गलत क्यों, y1 है ना, वो तो लेना ही पड़ेगा ना. Where x is a positive integer, find the number of possible values of x and y. If
अच्छा खासा सिंसियर बच्चा था, तुमने बिगाड़ दिया इसको। पढ़ना और सिंसियरिटी में फर्क होता है। अच्छा, हाँ निकला कितने? 3 नहीं, कुछ गड़बड़ है, 2 हैं, 3 कैसे आ गए? एक्स क्या है? ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन ग्रेटर देन 16 है, तो हाँ, तो इसके अंदर हमें क्या आइसोलेट करना है बेसिकली? वाई। अब अगर हम x की वैल्यू 5 ले लेते हैं, 5 तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, तो 5 पे सॉल्यूशन आएगा, तो अगला 16 पे आएगा, ठीक है, तो अगला 16 पे आएगा, तो अगला 27 पे आएगा, है ना, अगला 27 पे आएगा, तो 11, अगला 38 पे आएगा, अगला 49 पे आएगा, तो इसके बीच की 2 ही वैल्यूज हैं, ठीक है, ये ऐसे है, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं, तो ये 5 - 3, वाई की वैल्यू 2 आ जाती है, तो चूंकि 11 का मल्टीपल है, तो ये 16 बनेगा अगली वैल्यू, ठीक है, तो अगर हम 16 ले लेंगे, तो 16 दूनी 32 -10 22, 22 डिवाइडेड बाई 11 2, ठीक है, और 16 -3, 16 -3 इज 13 और 2 15, ठीक है, तो अब इसके बाद वापस 11 ऐड करेंगे तो 27 बनेगा, इसमें भी हम ऐड कर करके निकाल सकते हैं, 13 ऐड करेंगे तो 28 बन जाएगा, ये पॉसिबल आंसर बनेगा, इसमें वापस हम 11 ऐड करेंगे तो 39 बन जाएगा, और इसमें वापस हम है
11, हाँ 13, ये तो ठीक है, ये 28 ही आ रहा होगा। अच्छा, एक 41 आ जाएगा, वापस हम ऐड करेंगे तो 49 आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये सब करने की जरूरत है नहीं, लेकिन एक जस्ट इन केस समझा रहा हूँ कि भाई पहली वैल्यू आ जाए तो अगली वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम। जितने से डिवाइड हो रहा है उतना ही ऐड करना पड़ेगा ना नेक्स्ट रिजल्ट आने के लिए, तो नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो एक बार पैटर्न पकड़ में आ जाए तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमें तो x की वैल्यू यही दोनों एक्सेप्टेबल है, बिकॉज में x की वैल्यू लाइज बिटवीन 16 एंड 40। बोलिए, यहां तक बात समझ में आती है सभी को? ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। How many ordered pair of positive integers x and y satisfy the equation हमारी इक्वेशन है 1/x + 1/y। हमें सॉल्व करना है। है बेटा? हाँ, वो दो इक्वेशन दो वेरिएबल होती थी ना उसमें, इसमें तो सिंगल इक्वेशन है, तो a + b = 8, 1/8 हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, कुछ तो दिमाग लगाना है, जुगाड़ करना है इसका। एक प्लेन पेपर देना मेरे को अगर है तो, रफ पेज जैसे। ये क्या हुआ, हिल गया क्या सिस्टम? Okay, try solving this question. How many ordered pair of positive integers satisfy this equation 1/x + 1/y = 1/8? नहीं, और कुछ नहीं है बेटा इसमें।
नहीं, तीन, सात, कैसे करें? तीन कैसे निकाले? चलो तीन भी बहुत निकाल दिए वैसे तो। हैं? अच्छा हैं? क्या टू एक्स को टू डालें, वाई को क्या आ जाएगा? लेकिन एक्स और वाई तो पॉजिटिव इंटीजर है, 8/3 तो फ्रैक्शन हो गया। 1/16 प्लस 1/16। हाँ, वेरी गुड। तो 1/8 प्लस 1/2 थोड़ी ना बनेगा आंसर। हाँ, x माइनस वाई नहीं, 1/x प्लस 1/y इज 1/8। कुछ अगर समझ में आ रहा है ना, 1/x प्लस 1/y। अच्छा चलो, अब इसको मैं समझाता हूं कैसे करना है। इसको हम सॉल्व करने का ये तरीका है कि 1/x प्लस 1/y को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा 8 है तो y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू इज इक्वल टू 1/8 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू एक्स वाई बनेगा, सॉरी वही बनेगा। ओके, यहां से मैं 8x माइनस एक्स वाई प्लस 8y इज इक्वल टू 0, मतलब कहीं भी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं? x कॉमन निकाल लूंगा तो 8 माइनस वाई बनेगा। अब जैसे 8 माइनस वाई बनाया ना, यहां पर भी मुझे 8 माइनस वाई बनाना है। क्या बनाना है? 8 माइनस वाई बनाना है और कुछ मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे बन सकता है? मान लेते हैं मैंने -8 कॉमन ले लिया, तो यहां पे -y लिख दिया। समझ में आ रहा है? तो मेरा 8y बन जाएगा और यहां पे -y आ गया। पर मुझे अंदर क्या चाहिए? +8 चाहिए। तो यहां पे अगर मैं अब हमें कौन सा एक मिनट, हमें 8 चाहिए ना, तो यहाँ -8 करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, रुको, कुछ गलती, माइनस माइनस आ गया ना, एक मिनट। 8y चाहिए तो -y ले लिया, मुझे +8 चाहिए, ठीक बात है, तो +8 चाहिए तो +8 कर दिया। तो ये बन जाएगा -64 एक्स्ट्रा आ गया। तो यहां पे मैंने -64 का +64 कर दिया इक्वल टू 0। कर सकता हूं मैं ये टेक्निकली? मुझे जब हम कॉमन निकालते हैं ना कोई डब्बा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, नहीं क्योंकि 8 माइनस वाई है ना, तो -8 -y आ गया। अंदर मुझे +8 चाहिए तो मैंने +8 लिख दिया। तो हाँ, इसीलिए तो लिख सकते हैं। इसमें मैंने 8x माइनस एक्स वाई में प्लस 8y में मैंने +64 कर दिया और -64 कर दिया। क्यों कर दिया? इसमें से कुछ कॉमन निकल जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन निकल जाएगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा भाई +64 और -64 ही करना है? उसका जुगाड़ बता रहा हूं मैं आपको। जब आपके पास जब आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा, तो सेकंड बॉक्स बनाने के लिए जो भी आपको फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी है वो लगा दो। क्योंकि उसको अगर प्लस लगाओगे तो माइनस कर दोगे, बात बराबर हो जाएगी, माइनस लगाओगे तो प्लस कर दोगे, बात बराबर। अब इन दोनों में से अपन 8 माइनस वाई अगर कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू -64। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे x माइनस 8, यहाँ 8 माइनस वाई, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं
तो y माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू -64 बनेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो अब मेरी जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बनेगी, मेरी इक्वेशन बनेगी x माइनस 8 इंटू वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 64। यही बात है, यहां तक समझ में आती है। नाउ कैन आई से दिस क्वेश्चन हैज नाउ बिकम द नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजॉल्विंग 64 इंटू 2 फैक्टर्स, बिकॉज समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू ये देगा। मतलब 64 को 2 टुकड़ों में रिजॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं, 1 इंटू 64, अब ये समझा रहा हूं, मैथ्स लगाएंगे लेकिन अभी समझाने के लिए 2 टुकड़ों में बांटना है, तो 1 इंटू 64 बन सकता है, 2 इंटू 32 बन सकता है, 4 इंटू 16 बन सकता है, 8 इंटू 8 बन सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x माइनस 8 इंटू वाई माइनस 8 को अगर हम ये करेंगे तो पॉसिबल आंसर है। तो अगर अपन इसमें x माइनस 8 की वैल्यू 1 ले लेते हैं और y माइनस 8 की वैल्यू 64 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू बनेगी 9 और y की वैल्यू बनेगी 72। तो एक पॉसिबल आंसर तो ये हो गया। सेकंड, अगर अपन x माइनस 8 को 2 मान लें और y माइनस 8 को 32 मान लें, तो x की वैल्यू बनेगी 10 और y की वैल्यू बनेगी 40। सेकंड आंसर हो गया। तीसरा पॉसिबल आंसर है x, अगर x माइनस 8 को अपन 4 मान लेते हैं तो x की वैल्यू बनेगी 12 और y की वैल्यू बनेगी 24। ये नेक्स्ट आंसर है। अगला पॉसिबल, x की वैल्यू, x माइनस 8 को 8 मान ले तो x की वैल्यू बनेगी 16 और y की वैल्यू भी बनेगी 16। तो अगर मैं x कॉमा y का आंसर्स निकालूं तो पहला वाला आंसर मेरा है 972, सेकंड मेरा आंसर है 1040, तीसरा मेरा आंसर है 1224 और चौथा मेरा आंसर है 1616। ये चार आ गए 9। अब इसमें x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 72। अगर मैं x की वैल्यू 72 कर दूं, y की वैल्यू 9 कर दूं तो भी तो आंसर आएगा। ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, ध्यान देना, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड का मतलब ये कि x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 72 इज डिफरेंट फ्रॉम x की वैल्यू 72, y की वैल्यू 9। यानी कि जैसे मैंने यहाँ x माइनस 8 को 1 माना है, अगर मैं x माइनस 8 को 64 मान लेता तो भी तो x का आंसर आता। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि x और y की जगह 9 और 72 रखेंगे तो मेरा आंसर आएगा। मतलब 1/9 और 1/72 रखेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1/8। आप बोलो नहीं सर, अगर मैं इसकी जगह 1/72 रख दूं, इसकी जगह 1/9 रख दूं, तो क्या क्या सेम मानना है या अलग अलग मानना है? इस केस में अलग अलग मानना है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर कह रहा है, क्योंकि पहले वाला ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको y को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे x को 72 रिप्रेजेंट कर रहा है, y को नॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइडियली आंसर डबल होना चाहिए, बट x इज इक्वल टू 8, 16, 16 वाले में तो कोई बात ही नहीं है भाई, x 16, y 16, y 16, x 16, बात तो फर्क पड़ नहीं रहा, इसलिए पंगा। क्या नहीं, कैसे हो जाएगा इसमें? करता हूं जो तू कह रहा है। 1/x इज इक्वल टू 8 माइनस 1/y, यही बनेगा। तो 1/x इज इक्वल टू 8y। हाँ हाँ ठीक है, ये एक मिनट, x इज इक्वल 8y divided by y minus 8. 8y माइनस 1 है, सॉरी, हाँ ठीक है। इसका रेसिप्रोकल हो गया तो हाँ, x की वैल्यू बनेगी y बाय, आपने यही ये तो कर दिया आपने जो तूने किया है। सर 1/8 है ये। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया ये तो। एक सेकेंड ऐसे भी हो सकता है। रुको, मैं एक मिनट। एट वाई बाय वाई माइनस 8, हाँ ठीक है। अब इसको क्या करना है?
वैल्यू डालते जाना 9 से शुरू होगी। नाइन डालेंगे तो 1 आएगा, 8 9 जा 72 हो जाएगा। 10 40 11 करने में दिक्कत क्या, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये बात है। 12 करेंगे 24 आ जाएगा। 16 पे 16, उसके बाद नहीं हो रहा। नहीं, अच्छा करो फिर एक बार। कौन सी कंस्ट्रेंट लगा दोगे, किसकी वैल्यू? अब मान लो तुम 17 क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है। आपको क्या पता चला कि अगला क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो, मेरे को ये बताओ, बस मेरा क्वेश्चन ये है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई नॉट 18, वाई नॉट 19? क्यों नेगेटिव में क्यों जा रही? माई ओनली प्रॉब्लम इज इन दिस केस, नहीं, माई ओनली प्रॉब्लम इज कि इफ यू पुट 17 18 19 देयर इज नथिंग टू डिस्कार्ड अनलेस यू गो हेड एंड ट्रायल एंड एरर ओनली। मतलब 17 करोगे तो ओनली थिंग इज एक्स इज नॉट गेटिंग एन इंटीग्रल वैल्यू, यही प्रॉब्लम आ रही है ना, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना। अच्छा, हाँ 24 तक लेके जाओगे, जब 24 और सामने 12 आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको करो, देखते हैं इसी मेथड से कर सकते हो या। और ऑफ कोर्स ये सब इतना करने की जरूरत नहीं थी। 64 नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजॉल्विंग इनटू 2 फैक्टर्स, मतलब ये तो समझाने के लिए था ना। तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 2 की पावर 6, 7 फैक्टर। समझ में आ रहा है? तो अगर रिपीटिशन वाला नहीं लेना है तो +1/2 करना था। नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे 6 + 1, याद है? तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हाफ करना था। अब यहाँ पे या तो +1 है या -1 है, यही बात है, क्योंकि +1 में रिपीटिशन वाला था और -1 में नहीं था। तो अगर हम 7 + 1 8 -1 करेंगे मान लेते हैं, तो 6/2 3 आ जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर में 6 आ जाएगा, रिपीटिशन नॉट था तो उसको जोड़ना पड़ेगा, 7 आ जाएगा। दूसरा तरीका सोचने का, रिपीटिशन कंसिडर कर लेते हैं, यानी सेम सेम कंसिडर कर लेते हैं, 36 जैसा परफेक्ट स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। उस केस में आ जाएगा 8/2 4, तो 4 का डबल करना पड़ेगा 8। लेकिन इस केस में बस इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्डर्ड पेयर बोला हुआ सेम सेम 2 बार जोड़ दिया, इट इज वन एंड द सेम थिंग, तो उसमें से एक घटा दिया तो बन गया 7। और नहीं तो ये वाला मेथड तो अपने पास है ही, है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार इसको भी हम दोनों ही मेथड से ट्राई करके देखते हैं। अगले वाला क्वेश्चन आपको निकालना है, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। हमें चाहिए ऑर्डर्ड पेयर चाहिए एक्स और वाई का, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है 1/x + 3/y इज इक्वल टू 1/29। हाँ ऐसा ही मैंने भी यहाँ पे मेरे भी हो गया था, जैसे ये और का जैसे लो बाई नाखून लग गया गैस। मेरी नाक वाइट वाइट हो रही है, पेट के अंदर पतला हो गया।
हैं? ये आज कितनी तारीख होगी? 17, 3 और 4, 7 दिन हो गए। क्या?
हाँ जी, कुछ बनी बात, जुगाड़ बुगाड़ कुछ नहीं? मेरे मेथड पे ही आना पड़ेगा मुझे लग रहा है, जो पहले कराया था। नंबर सिस्टम्स हैं, 3 तो आगे, तो 3 आगे तो ऑर्डर्ड पेयर करना पड़ेगा, तो 6 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऑर्डर्ड पेयर 6 हो गया। ठीक है, अब पंगा ये है कि उसके अलावा कुछ है क्या? दिक्कत ये है कि इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन y नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर है ना, ये पंगा है। वो केस निकालना बाकी फंस जाएगा, वो केस फंसेगा सिर्फ। अच्छा, टफ क्वेश्चन, इट्स नॉट इजी क्वेश्चन टू बी बाय एनी स्टैंडर्ड, वेरी गुड, वेरी टफ क्वेश्चन। अब इसके मैं केसेस समझाऊंगा डिटेल में कैसे करना है। हाँ, वो नंबर सिस्टम से ही सॉल्व हो पाएगा, उसी में स्प्लिटिंग हो पाएगी। अदरवाइज इसमें तो, इसमें क्या है कि हम ट्रायल कर रहे थे, डाल डाल के देख रहे थे। उसमें तो चलो क्योंकि लिमिट आ गई थी, पैटर्न बन गया था, इसमें तो कोई बन नहीं रहा ना। तो वापस से लेट अस डू द प्रोसेस। सो आई हैव y plus 3x डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 1/29। यहां तक तो आ गया होगा। 29y प्लस 87x इज इक्वल टू xy। तो मैं इसको कर सकता हूं 29y प्लस 87x माइनस xy इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं कुछ कॉमन निकालना चाहता हूं। क्या कॉमन निकाल सकता हूं? x। तो यहां बनेगा 87 माइनस y। अब यहां से मुझे, मेरे पास 29y है और मुझे क्या चाहिए? माइनस y। तो टेक्निकली मैं माइनस 29 कॉमन निकाल लेता हूं, ताकि जब मैं माइनस y करूंगा तो प्लस 29 हो जाएगा, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? प्लस 87 चाहिए ब्रैकेट में, तो प्लस 87 किया। तो चूंकि मैंने 87 अपने मन से लिख दिया, तो माइनस 29 इंटू 87 मैंने अपने मन से लिख दिया, तो RHS में भी माइनस 29 इंटू 87 लिख देता हूं। जो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा डाला वो यहाँ लिख दूंगा, तो काम चल जाएगा। इन दोनों में से 87 माइनस y मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो यहां बचेगा माइनस 29 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 29 इंटू 87। सो दिस, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूं तो y माइनस 87 और ये बनेगा x माइनस 29 इज इक्वल टू माइनस 29 इंटू 87। यही बनेगा, ये कट जाएगा। तो मेरी इक्वेशन आ गई y माइनस 87 इंटू एक्स माइनस 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 87। यही बात है, विच इज नथिंग बट दिस इज 3 इंटू 29 विच इज 3 इंटू 29 का स्क्वायर। यही बनेगा। तो x माइनस 87 इंटू एक्स माइनस 29 की ये वैल्यू आ गई। बेसिकली वी हैव टू रिजॉल्व दिस इनटू 2 फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर्स में कैसे करेंगे? हाफ इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। याद आ रहा है, पावर्स की पावर में ऐड करना है ना। हाफ इंटू इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1, इसकी पावर 2 है तो 2 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 3 पॉसिबिलिटीज। वो 3 पॉसिबिलिटी कौन सी है एक बार मैं समझा देता हूं 1 मिनट के लिए। इसको 3 कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? आप इसको कर सकते हो 1 इंटू 3 इंटू 29 का स्क्वायर, यानी आपने x माइनस 87 को 1 मान लिया, x माइनस 29 को ये मान लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 3 इंटू 29 का स्क्वायर, इसको 3 मान लिया, इसको 29 का स्क्वायर मान। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 87 इंटू 29, यही हो सकती है। उसके बाद रिवर्स हो जाएगी गाड़ी। समझ में आया? इसको 2 फैक्टर में स्प्लिट करना है ना। तो एक बार 1 ले लिया, बाकी इधर कर दिया, एक बार 3 इधर कर दिया, 29 इधर, एक बार 87 इधर कर दिया, 29 इधर। अब जब हम करेंगे मान लो तो रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं x माइनस 87 को 1 मानूंगा, उस केस में x की वैल्यू 88 बनेगी।
तो उस केस में y माइनस 29 को मैं 3 इंटू 29 का स्क्वायर मान रहा हूं, तो उस केस में y की वैल्यू 3 इंटू 29 का स्क्वायर प्लस 29 जो भी बनेगा ये बन जाएगा, एक आंसर हो गया। उसी तरीके से x माइनस 87 को 3 मानूंगा, y माइनस 29 को ये मानूंगा, एक और आंसर बनेगा। x माइनस 87 को 87 मानूंगा, x माइनस 29 को ये मानूंगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज तो ये हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड में नहीं, इस वक्त x की वैल्यू अगर मैं 88 माने तो y की वैल्यू दूसरी आ रही है, लेकिन अगर x माइनस 87 की बजाय 1 मानने की बजाय x माइनस 29 को 1 मानूंगा तो x की वैल्यू 30 बन जाएगी और y की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हम चेंज कर देंगे, जब x माइनस 87 को मैं उल्टा कर दूं, यानी अगली पॉसिबिलिटी है 3 इंटू 29 का स्क्वायर इज टू 1, इसको कर सकता हूं 29 का स्क्वायर इंटू 3, और इसको कर सकता हूं मैं 29 इंटू 87। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो 3 ये निकाल दिया तो उसका डबल ही करना है, 6 हो गया। पंगा ये है कि नेगेटिव में भी ये सब कुछ हो सकता है। नेगेटिव का मतलब ये है कि मान लो मैंने कहा कि -1, ये 6 सॉल्यूशन समझ में आ गए। मैं एक बार नीचे लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रहे। मान लेते हैं मैं ये कह सकता हूं कि रेदर देन सेइंग दिस आई कैन टेक इट एज -1 इंटू माइनस ऑफ 3 इंटू 29 का स्क्वायर, ये भी तो एक ऑप्शन है। उस केस में x माइनस 87 की वैल्यू मैंने क्या मानी है, -1, और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x माइनस 87 ऊपर क्या था, y माइनस 29 था, y माइनस 87 था ऊपर, फिर कॉपी में गलत कर दिया क्या, यहां गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैंने y माइनस 87 को मैंने -1 मान लिया, समझ में आ रहा है, y माइनस 87 को मैंने -1 मान लिया, तो यहां पे मुझे x माइनस 29 को माइनस ऑफ 3 इंटू 29 का स्क्वायर मानना पड़ेगा। इस केस में y की वैल्यू तो आ जाएगी प्लस 87 माइनस 1 यानी कि 86, और y की x की वैल्यू आ जाएगी 29, ये प्लस में है, -3 इंटू 29 का स्क्वायर। ये बन सकता है, एक पॉसिबल आंसर है, बट ये हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि इसने हमसे कोई कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू को जो पॉजिटिव करने के लिए x माइनस 29 का 29 राइट साइड में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होनी चाहिए वो 29 से नेगेटिव में 29 से कम होएगी तभी बात बनेगी। मतलब सेकंड सॉल्यूशन मान लेते हैं, मैंने कर दिया -3 इंटू -29 का, ये भी नहीं होगा क्योंकि राइट साइड में -29 का स्क्वायर है, प्लस 29 करेगा तो प्लस तो बनेगा, ये भी रूल्ड आउट है। मान लो मैंने यहाँ पे 29 कर दिया, यहाँ -87 कर दिया, तो भी रूल्ड आउट हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू जो है हमको कितनी चाहिए, 29 से छोटी चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि ये x वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बने। लेकिन जब मैं इसको रिवर्स करना शुरू करूंगा, रिवर्स करने का मतलब है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे -87 और यहाँ -29 कर दिया, क्या ये एक्सेप्टेबल आंसर है? इसमें भी पंगा है। क्यों पंगा है, अगर y माइनस 87 को अपन -87 मानेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर हम x माइनस 29 को इज इक्वल टू -29 बोलेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और एक्चुअली एक्सेप्टेबल है, लेकिन चूंकि हम ओरिजिनल क्वेश्चन देखेंगे तो x और y डिनोमिनेटर में है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये पंगा है। इसका मतलब है 29 भी नहीं ले सकते, लेकिन 29 से कम की वैल्यू अगर अपन लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अपन ने -29 स्क्वायर, यहाँ पे -3 ले लिया, उससे क्या होगा, अपन y माइनस 87 की वैल्यू -29 का स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 29 की वैल्यू -3 करेंगे, तो जब x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो +29 -3 बनेगा, तो x तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन y अपना अभी भी नेगेटिव रहेगा, बट that is an acceptable solution according to the question. So addition to those 6 option, this is my one of the options. Other possible option is यहाँ पे -3 लिख दिया, मतलब -3 इंटू 29 है ओवरऑल, और यहाँ -1 लिख दिया। अब क्या होगा, x माइनस 29 की वैल्यू हमने -1 कंसिडर करी है, तो जब 29 राइट साइड में जाएगा तो 28 हो जाएगा। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन ये भी एक्सेप्टेबल है। तो 8 तो वो 6 तो वो एक्सेप्टेबल हो गए, 3 और 3 ऑर्डर्ड करके। क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव वाले केसेस को भी चेक करना पड़ेगा।
फिर उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि x की वैल्यू हमेशा प्लस ही आए, इसका मतलब x माइनस के साथ वाली जो वैल्यू है हमेशा राइट साइड उसको नेगेटिव वाली को उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 29 से कम होगा तभी वो उसको पॉजिटिव बना पाएगा, यानी मैग्नीट्यूड या तो -1 हो या -3 हो राइट हैंड साइड में तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो आंसर इसका बनेगा 8। ये लिखे हुए ऊपर ऊपर ये देख ए यहाँ पे ये वाले इसको ब्रेकअप करेंगे तो 3 इंटू 29 का स्क्वायर है, तो एक बार 1 मान लेते हैं, सारा डेटा इधर शिफ्ट कर दिया, फिर इसमें से 3 इधर ले आए, 29 इधर ले गए, फिर इधर 3 और 29 ले आए तो 20 उधर 29 चला गया। अब अगर अपन 29 भी इधर ले आएंगे तो उधर 1 बचेगा, ये वाला केस 29 स्क्वायर इंटू 87 इंटू 29 3 इंटू वही ओरिजिनल वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद अपन 29 एक और ले आए तो यहाँ 3 बचेगा। फिर अपन ये वाला गलत लिख दिया, रुको मैंने 29 तो हाँ, तो एक यहाँ पे 2 ले इस पे सिंगल लेकर आए हैं, ठीक है, और भी तो बचेगा यहाँ पे 1 29 लेकर आए 3 29 इंटू 3 97 और फिर रिवर्स हो जाएगा ना है। हाँ तो बस और कौन सा केस बचा, हाँ मतलब मैं ही कह रहा हूँ, चलो वो रिवर्स हो गया, मतलब बात ये तो ये पॉजिटिव 3 केसेस बन रहे हैं, उसको रिवर्स करेंगे तो 6 केसेस बन जाएंगे, यही आंसर है इसका। तो 6 ये बनेंगे, फिर नेगेटिव नेगेटिव एक्सेप्टेबल हो सकता है क्योंकि इंटीजर बोला, अगर ये ना बोलता x ग्रेटर देन 0 तो अपने आंसर 12 बनते, फिर नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है ना, 6 ये और 6 और 12, वो शायद अगले में है। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स x and y satisfy this equation? कौन सा, हाँ बनेगा ये वाला बनाए, हाँ y माइनस 87 इज इक्वल टू 87, तो y की वैल्यू इसका डबल हो जाएगी, 7 दूनी 14 174 हो जाएगा। हाँ y माइनस 29 इज इक्वल टू 29, तो y की वैल्यू 58, तो चूंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है ना तो चल ही रहा है ना सारा, तो अगर अपन 1/50 x और y डालेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा है ना। हिट एंड ट्रायल में तो जोर आ जाएगा है, तो फिर दिमाग लगाना था कि भाई रिवर्स होएगा, फिर वो माइनस वाला तो पंगा है ना, तो मंगा माइनस वाला डाल के देख लेते हैं, हाँ नहीं निकल तो जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब अल्टीमेटली देखो जहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये भी कोई मेथड थोड़ी ना है, ये भी तो ट्रायल एंड एरर ही है इन अ सेंस, तो आप वैसे भी ट्रायल एंड एरर कर लो, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट थोड़ी ना है, तो 2 वेरिएबल सिंगल इक्वेशन है, हम भी तो यही लगा रहे हैं, कुछ कुछ और टूल्स यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, बट अल्टीमेटली हम भी यहाँ पे इन अ सेंस ट्रायल एंड एरर का ही मेथड है, बिकॉज देयर आर 2 वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट, तो वो आप पहले कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। कहाँ, अभी तो 15 मिनट पड़े हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लो, नहीं मेरे को पता है डाउट्स में आएंगे मेरे पास ही पक्का अच्छा, एक्चुअली ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A के 3-4 क्वेश्चन है सेकंड वाले में, वो हर बार आते हैं, तो मैं क्या क्लास में ही करा दूं ताकि जोर ना आए, क्योंकि ये समझाना थोड़ा शायद पीछे टिपिकल है, तो समझाने के लिए किया था मैंने, भाई 1-2 क्वेश्चन कर लो, देखते हैं। चलो ये वाला एकदम सेम आइडेंटिकल ही है, कुछ नया नहीं है इसमें, ट्राई हैंडलिंग दिस क्वेश्चन। अच्छा ये आइडेंटिकल नहीं है तो ये कर लो, चलो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 273, नेक्स्ट क्लास है, हाँ कोई नहीं, ये कर लो लास्ट क्वेश्चन। कौन से आज किसकी क्लास है, रीजनिंग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 273।
8C। हाँ जी, कैसे करोगे? x plus y into x minus y is equal to 273, which is nothing but 3 9। तो बेसिकली इसको दो फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है ताकि x प्लस वाई की वैल्यू x माइनस वाई की, यानी कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे, पेयर बनेगा 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 प्लस, कितने आ गए 4, यानी 4 जोड़े बनेंगे। तो 4 आंसर है, क्योंकि x और y पॉजिटिव माना हुआ है। हालांकि x² नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन x और y की पॉजिटिव वैल्यू मानी हुई है, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 4 फैक्टर्स में रिजॉल्व भी तो करना है, हैं? ये मतलब ऐसे हो गया। हाँ, इसको छोड़ दो, नीचे वाले को मान लेते हैं ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक मैं इसको 1 इंटू इसको एक तरफ कर लेता हूँ 3 7 इंटू 13, ये एक नंबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब मैंने x प्लस वाई को 1 मान लिया और x माइनस वाई को मैंने मान लिया 3 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ से मैं सॉल्व करके x और y निकाल सकता हूँ। समझ में आ रही बात? फर्स्ट। दूसरा कर सकता हूं मैं, यहाँ पे 3 ले सकता हूँ और यहाँ पे 7 इंटू 13 ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको x प्लस वाई की वैल्यू 3 मान लेता हूँ और x माइनस वाई की वैल्यू 7 इंटू 13 मान लेता हूँ। ऑब्वियसली ये बनेगा नहीं, रिवर्स वाला लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि x माइनस वाई प्लस ये 3 है और x माइनस वाई ज्यादा आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? रिवर्स लेना पड़ेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू ये लेनी पड़ेगी, माइनस वाली ये लेनी पड़ेगी, डबल करना पड़ता है ना ऑर्डर्ड पेयर में। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या है? 7 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 13 यहाँ पे ले सकते हैं। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या है? 13 इंटू 3। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबल वैल्यूज क्या है? बस ये 4 हो गई, उसके बाद रिवर्स होती जाएंगी। अब अपन को x प्लस वाई ये मानना पड़ेगा, x माइनस वाई, एक आंसर आ जाएगा x और y। फिर x प्लस वाई ये मानो, x माइनस वाई ये मान लो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर लेना है ना। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, मैं तो लॉजिक समझा रहा हूँ कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट है तो ये सम की वैल्यू ज्यादा होगी, माइनस की वैल्यू कम होगी। बस सॉल्व, अगर सॉल्व करना है तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है। माइनस माइनस लेना नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर पूछ रखा है, तो काम चल जाएगा। ये वो हाफ वाला पहले नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, फिर समझ में आएगा, तुम्हारा हुआ नहीं है? हो गया तुम्हारा नंबर सिस्टम? तुम्हारा नहीं, कुछ और बच्चों तुम्हारा नहीं हुआ है, मेरे को पता है, तो कराना है, बैकअप में बना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन और कर लें, 8 मिनट पड़े हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, समझ में आई आज की क्लास? चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ऑनलाइन सबको समझ में आया? मान्या, पूजा? यस सर, हो गया। ठीक, क्या ऑनलाइन में? हाँ सर, समझ आ गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मैं अभी एंड कर रहा हूँ, दूसरी क्लास शुरू होएगी, फिर देखना। ठीक है, ठीक ठीक है, है ओके, दोबारा। सर।